الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان قرآنی عربک گرامر کا آج ہمارا سبق نمبر 17 ہے. الجملۃ الاسمیہ یعنی جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کچھ ہفتوں سے، اور آج اسی جملہ اسمیہ کا 5واں باب ہے، 5واں پارٹ ہے، جس میں ہم جانیں گے کہ جملہ اسمیہ کو یعنی جو ایک مثبت جملہ ہوتا ہے، پازیٹیو جملہ ہوتا ہے، اس کو کیسے نگیٹیو جملہ بنائیں، یا جملہ اسمیہ میں نفی کا پہلو، منفی کا پہلو، نیگیٹیوزم یعنی انکار کا پہلو، اس میں کیسے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں، کیسے یہ ادا ہوتا ہے، کون سے الفاظ کا ابتدا میں جملہ اسمیہ کے لانے سے اس جملہ ابتدا میں یعنی جملہ اسمیہ میں نیگیٹیو ایک سینس ڈیولپ ہوتا ہے، نیگیٹیو سینٹنس وہ بن جاتا ہے. اس کے بارے میں آج ہم اس لیکچر میں، اس درس میں پڑھیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے لیکچر کی طرح جس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ جملہ اسمیہ کو کیسے ہم استفہام یعنی سوالیہ جملہ بنا سکتے ہیں، اسی طرح ہمارے پاس جملہ اسمیہ جو ہے اس کو ہم کیسے منفی جملہ بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس کچھ ایسے الفاظ ہے کہ کچھ ایسے جن کو ہم حروف کہہ سکتے ہیں، جو اگر جملہ اسمیہ کے ابتدا میں آ جاتے ہیں تو وہ جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ کو وہ منفی جملہ بناتے ہیں. ایسے الفاظ کو ہم حروف نافیہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ الفاظ جو جملہ اسمیہ کے ابتدا میں آ کر، شروع میں آ کر اس پورے جملے میں انکار کا پہلو ڈیولپ کرتے ہیں. ایسے حروف کو ہم کہتے ہیں حروف نافیہ. اور وہ 3 طرح کے حروف ہمارے پاس ہے. ایک ہے ما، دوسرا ہے لا، اور کبھی کبھی تیسرا جو حرف استعمال ہوتا ہے وہ ہے لا کا. اکثر آپ دیکھیں گے ما اور لا استعمال ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ لاتا بھی استعمال ہوتا ہے. یہ بھی ایک ایسا حرف نافیہ ہے جس کی وجہ سے جملہ اسمیہ میں منفی کا پہلو یا جملہ اسمیہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نیگیٹو بن جاتا ہے. اب یاد رکھیے گا کہ حروف نافیہ جب بھی جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہ مبتدا پہ کوئی اثر ادا نہیں کرتے، مگر جو جملہ اسمیہ کا جو خبر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جملہ اسمیہ میں 2 اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. تو جب بھی حروف نافیہ جملہ اسمیہ کے ابتدا میں آتے ہیں تو مبتدا پہ کوئی اثر انداز نہیں کرتے، کوئی اثر نہیں لاتے، مگر جو اس کی خبر ہوتی ہے اس کو وہ اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ نصب میں لے آتے ہیں، یعنی اس کو منصوب بناتے ہیں. تو یہ ایک اسپیشل چیز آپ یاد رکھیے گا کہ جب بھی حروف نافیہ جملہ اسمیہ کے ابتدا میں آتے ہیں مبتدا کو نہیں چھیڑتے، مگر جو اس کی خبر ہے اس کو وہ حالت رفع سے نکال کر حالت نصب میں لے آتے ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب بھی ہمارے پاس جملہ اسمیہ کے ابتدا میں حروف نافیہ یعنی وہ حروف آتے ہیں جو اس جملے کو نیگیٹو سینٹنس بناتے ہیں، اس کو منفی جملہ بناتے ہیں. اب سب سے پہلے ہم اٹھائیں گے ما کی مثال. ما جو ہے یاد رکھیے گا، ما ہمیشہ نکرہ اور معرفہ یعنی دونوں قسم کے مبتدا پہ داخل ہوتا ہے. یعنی اگر آپ ما لاتا اور لا پہ آپ اس میں تقابل کریں گے تو یاد رکھیے گا جو ما ہے یہ نکرہ اور معرفہ ہر ایک مبتدا پہ داخل ہوتا ہے. ابھی تک آپ نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس جو مبتدا ہوتا ہے
وہ عموماً معرفہ ہوتا ہے، مگر اگر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ لیکچرز میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ مبتدا کچھ حالات میں نکرہ بھی آ سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کس صورت میں آتا ہے جب آپ کو کوئی زور دینا ہو، کسی چیز پہ حصر ڈیولپ کرنا ہو، اس وقت جو مبتدا ہے وہ نکرہ بھی آ سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا مبتدا جو ہے اگر وہ نکرہ ہو یا معرفہ ہو تو ما جو ہے یہ ہر صورت میں آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک جملہ ہے زید صالح، اگر نارمل جملہ ہوتا زید صالح، ترجمہ ہوتا زید، بلکہ زید ایک نیک لڑکا ہے، ٹھیک ہے، یا زید نیک لڑکا ہے۔ مگر اس سے پہلے جب ہم نے استعمال کیا ما زید صالحا، اب دیکھیں ما کی وجہ سے سب سے پہلے کیا ہوا، جو مبتدا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا، مبتدا یہاں پر معرفہ ہے کیونکہ زیدن یہ اس میں علم ہے، کسی کا نام ہے، اور اس کے بعد صالحن ہونے کے بجائے یہاں پر ہے صالحن، یعنی یہ حالت رفع سے نکل کر اس ما کی وجہ سے حالت نصب میں آیا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ ہوگا زید نیک نہیں ہے۔ اب ما کی وجہ سے جو ابھی تک جملہ پوزیٹو تھا یعنی زید نیک ہے، اب اس کا ترجمہ ہوگا زید نیک نہیں ہے، زید نیک نہیں ہے۔ سورہ یوسف کی مثال لیں گے، ما ھذا بشرا، ما ھذا بشرا، جب یوسف علیہ السلام کو جو عزیز مصر اس کی جو وائف تھی انہوں نے اس کو باقی عورتوں کے سامنے رکھا، تو جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا کیونکہ وہ کافی زیادہ حسین تھے، تو کہنے لگے ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے۔ ھذا بشرن ہوتا یہ انسان ہے، بٹ ما ھذا بشرا یہ انسان نہیں ہے، یعنی انہوں نے انکار کر دیا یہ انسان نہیں ہے۔ اس کی خوبصورتی دیکھتے وقت انہوں نے کہا یہ انسان ہی نہیں ہے بلکہ یہ ملک کریم ہے، یعنی کوئی ایک نیک کوئی ملک ہے، کوئی یہ فرشتہ ٹائپ کا ہے، یعنی ان کی خوبصورتی، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کے ان کے بشر ہونے کا جو ایک تقاضا ہے وہ ان کے ذہن سے دور ہو گیا۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ ہاذا پہ کوئی اثر نہیں ہوا، مگر بشرن اصل میں بشرن تھا، ماں کی وجہ سے یہ جو ہمارے پاس خبر ہے یہ حالت نصب میں آ گئی۔ سورۃ المجادلہ میں ہے ما ہن امہاتہم، ما ہن امہاتہم، ترجمہ وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امہاتہم، ہن امہاتہم، ان کا ترجمہ ہوتا ان کی مائیں ہیں، مگر ماں لگانے کی وجہ سے یہ بن گیا وہ ان کی مائیں نہیں ہے۔ سورۃ المجادلہ کی آیت۔ اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز آپ نوٹ کر لیجئے کہ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے ماں کی جو خبر ہے کبھی کبھی حرف جارہ اس خبر کے اوپر بازیر بھی داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بھی داخل کرنے سے خبر جو ہے وہ نیچرلی آپ کو پتا ہے جب بھی حرف جارہ داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے یعنی اسم کو جری حالت میں لے جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے ما ابتدا میں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہمارے پاس مبتدا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں، مگر اس کے ساتھ جو خبر ہے اس کے ساتھ بازیر بھی لگا ہوا ہے، جیسا کہ یہاں پر مثال ہے ما اللہ بغافل، ایک ساتھ پڑھیں گے ما اللہ بغافل، تو یہاں ما ہے، مبتدا ہے، اور خبر سے پہلے بازیر بھی ہے۔ اس بھی کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ جو اسم ہے یعنی خبر ہے یہاں پر یہ حرف جارہ یعنی یہ مجرور بن گیا حرف جارہ کی وجہ سے، تو بغافلن بن جائے گا بغافلن، ٹھیک ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جملے میں زوردار نفی ڈیولپ ہوتی ہے، یعنی ابھی تک جو انکار تھا وہ تو تھا ہی، مگر جب بازیر بھی اور ایڈ ہو کے آ گیا جس کی وجہ سے یہ ہمارے پاس خبر جو ہے یہ ہمارے پاس جری حالت میں آ گیا، تو اس جملے میں زوردار نفی ڈیولپ ہو گئی، یعنی انکار کا یہ جملہ جو تھا، یہ جو منفی جملہ تھا، اس میں اور منفیت
یا اس میں اور ہمارے پاس نیگیٹیوٹی ڈیولپ ہو گئی، زوردار نفی، یعنی جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں نا کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے، کبھی ہم کہتے ہیں بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، یعنی جب ہم کسی سینٹینس میں اس انکار کے اوپر زوردار نفی کرتے ہیں، ایسی عرب میں جب عرب کے لوگ یا قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ اگر ما کے بعد خبر پر، مبتدا پہ نہیں خبر پر اگر بازیر بھی حرف جارہ لگا ہوگا تو کیا ہوتا ہے کہ اس منفی جملے میں اور منفیت یا اور انکار یا زوردار نفی کا پہلو جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اس با کو بائی زائدہ بھی کہتے ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ جو با ایکسٹرا لگنے سے اس جملے میں نفی اور زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے، اس با کو بائی زائدہ بھی کہتے ہیں، با زائدہ، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا، سورۃ البقرہ آیت 74، مَاللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ بالکل غافل نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی تک ہوتا اگر با زیر بنا لگا ہوتا تو اس کا ترجمہ ہوتا اللہ غافل نہیں ہے، مگر یہ جو بالکل بیچ میں آ گیا اس سے زوردار نفی ڈیولپ ہو گئی، یعنی اللہ بالکل بھی غافل نہیں ہے، یعنی آپ کو ذرا بر کا بھی اس کا یعنی یہ دماغ میں نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نعوذ باللہ غافل ہے، اللہ بالکل بھی غافل نہیں ہے، ہر ایک معاملے سے اللہ بالکل بھی غافل نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہے وا اور ما ہم بمؤمنین، ما حرف جارہ، سوری یہ ہمارے پاس حرف یعنی نافیہ ہے، ما ہم مبتدا بھی لگ گیا یعنی بائی زائدہ آ گیا، مؤمنین یعنی مؤمنون بن گیا مؤمنین، اور یہ جری حالت میں آ گیا، ترجمہ ہو گیا اور وہ بالکل مومن نہیں ہے، یعنی بالکل بھی وہ مومن نہیں ہے۔ کسی چیز کو یعنی کسی انسان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ مومن نہیں ہے اور اس کے ایکسٹرا میں اگر آپ یہ کہیں کہ وہ بالکل بھی مومن نہیں ہے تو اس میں زوردار نفی کا پہلو ڈیولپ ہو گیا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت 167 میں وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور ہرگز نہیں نکلنے والے آگ میں سے، یعنی جب جہنمیوں کو مشرکوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ ہرگز بھی اس جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ ایک تو تھا کہ وہ نہیں نکلیں گے، دوسرا ہے وہ ہرگز بھی اس سے نہیں نکلیں گے۔ جو ایکسٹرا جو اس میں نفی کا پہلو ڈیولپ ہو گیا وہ بازیر بھی کی وجہ سے، اور آپ نے دیکھا اور بازیر بھی جو ہے یعنی جس کو بائی زائدہ کہتے ہیں وہ مبتدا پہ نہیں بلکہ اس کی خبر میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس قرآن مجید میں ایک اور بات آیت ہے وما صاحبکم بمجنون، سورہ تکویر آیت 22، وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی ہرگز دیوانہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دیوانہ نعوذ باللہ نہیں ہے، ہرگز دیوانہ نہیں ہے، یعنی جو آپ کی باتیں آپ سے یہ بتا رہا ہے اللہ کی طرف سے بتا رہا ہے، اور دماغ میں بھی مت آئے کہ یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دیوانہ ہے۔ اسی طرح سورۃ الحاقہ آیت نمبر 41 میں وما ہوا بقول شاعر، اور ہرگز، اور یہ وما ہوا اور یہ ہرگز کسی شاعر کی بات نہیں ہے۔ ایک تو تھا کہ یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، دوسرا ہوتا ہے یہ ہرگز کسی شاعر کی بات نہیں ہے، تو اس جملے میں اور نیگیٹیوٹی ڈیولپ ہو گئی بازیر بھی کی وجہ سے۔ سورۃ القلم آیت 2 سے 4 میں وما، اس کے بعد ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانہ نہیں ہے، وَإِنَّ، اور بے شک، لَكَ، تیرے لیے، لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُون، تیرے لیے لازماً ایک بے انتہا اجر ہے، وَإِنَّكَ، اور بلا شبہ، لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، آپ ہی یعنی تو ہی بہت بلند اخلاق پر ہو۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ ماں آ گیا، ماں کی وجہ سے نیگیٹیوٹی ڈیولپ ہو گئی، اور جب بازیر بھی ایڈ ہو جاتا ہے بازیر بھی کی وجہ سے، جیسے آپ نے دیکھا یہاں پر، اس کی وجہ سے اس نیگیٹیوٹی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک اور چیز امپورٹنٹ یاد رکھیے گا کہ اگر ماں کی خبر پر، یعنی آپ نے سب سے پہلے ماں دیکھا اور مبتدا پہ نہیں بلکہ خبر پر اگر آپ نے الا داخل
हुआ, देखा, यानी जैसा कि यहाँ पर आपके सामने मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, माँ तो इनकार का जुमला है, जैसा कि आपने पढ़ा, माँ जो है ये हर्फ नाफिया है, इनकार करता है। मगर अगर उसके बाद जो हमारे पास उस जुमला इस्मिया का खबर है, उस खबर से पहले अगर इल्ला दाखिल हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि माँ का जो अमल था वो बातिल हो गया। यानी माँ की वजह से जो नेगेटिविटी इस जुमले में डेवलप होने वाली थी, वो नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म हो गई। और अच्छा, और यानी यानी खबर जो हालत रफा में ही रहती है, यानी आपने देखा माँ जो है इब्तिदा में आएगा, मुब्तदा पे कोई फर्क नहीं करेगा। उसके बाद जो खबर है उससे पहले इल्ला आएगा, और खबर में जो तब्दीली इससे पहले आ गई थी, यानी वो नस्ब में चला गया था, तो इल्ला की वजह से वो नस्ब में नहीं बल्कि रफा में ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो माँ का असर था नेगेटिव करने में, वो असर इल्ला की वजह से खत्म हो गया। तो इस अमल से जुमला जो है वो मनफी नहीं होता, बल्कि इस अमल से इस जुमले में काफी ज्यादा ताकीद पैदा होती। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक जुमला जाहिर करूं कि ये कोई आपसे कोई कहेगा कि ये कितना अच्छा खाना आपके सामने, मैं कहूंगा ये नहीं है अच्छा, यानी ये मैं कहूंगा ये नहीं है अच्छा, बल्कि सबसे अच्छा है। यानी आप ये कह सकते हैं ये अच्छा ही नहीं बल्कि सबसे अच्छा है, ये नहीं है बल्कि सबसे अच्छा, यानी इसके बरकस में जितने भी बाकी अच्छी चीजें हैं वो है। यानी किसी जुमले में मजीद जो ताकीद दी जाती है, सबसे पहले उसको इनकार करके उसकी फौकियत बाकी सब चीजों पे दी जाती है। मिसाल से आपको समझ में आएगी बात, सूरह आल इमरान 144 में अल्लाह सुब्हानहू तआला का फरमान है, मा मुहम्मदुन, तर्जुमा नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्ला रसूल, मगर अल्लाह के रसूल, अल्लाह के मैसेंजर, अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर। तो माँ की वजह से नेगेटिविटी थी, मगर इल्ला की वजह से ये नेगेटिविटी न सिर्फ खत्म हुई, बल्कि इस जुमले में ताकीद का पहलू डेवलप हो। ताकीदन कहा जाता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के रसूल है, ताकीदन, यानी इसमें काफी ज्यादा जोर दिया जाता है। सूरतुल कमर आयत 50 में मा अमरुना, नहीं है हमारा हुक्म, इल्ला वाहिदन, मगर एक ही, यानी हमारा कोई हुक्म नहीं है, फिर कहा जाता है सिर्फ एक ही, यानी जो भी हमारा हुक्म है वो एक ही है। मगर इसको कैसे बताया जाता है, पहले चीजों को इनकार किया जाता है, पहले नफी की जाती है, फिर नफी को तोड़ने के लिए इल्ला लगाया जाता है। और इल्ला लगाने के बाद आप देखेंगे जो इससे पहले ये जो खबर में जो रफा से निकल कर नस्ब में आया था, वो नस्ब से निकल के वापस रफा में चला जाएगा, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। देखिए, इन छोटी छोटी बारीक चीजों को जब आप नोट करेंगे, तो अब आप जब कुरान मजीद पढ़ेंगे, अरबी पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अरबी जो है, अल्लाह ताला का जो कलाम है, वो कितना रिच है, कहाँ पर कितना जोर दिया गया, कहाँ पर किस तरह बात की गई। इन्हीं चीजों में रमूज छुपे हैं कुरान मजीद के। इसीलिए कहते हैं कि कुरान मजीद को 100% ट्रांसलेट करना ये मुमकिन नहीं है। सूरतुल अनफाल आयत नंबर 10 में है, वमा, और नहीं, अन नसरु, मदद है, यानी नहीं मदद है, इल्ला, मगर, मिन इंदिल्ला, मगर अल्लाह ही के पास, यानी मदद है ही नहीं, पहले इनकार किया गया, फिर कहा गया बगैर, सिर्फ जो मदद है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। ये जुमला ऐसे भी कहा जाता था कि भाई अल्लाह के बगैर किसी की मदद नहीं है, मगर जब इसको ऐसे कहा जाता है कोई मदद है ही नहीं मगर वो जो अल्लाह की तरफ से हो, तो इससे वो जो पहला जुमला था, नॉर्मल जुमला था, उसके बरक्स में मजीद ताकीद डेवलप हो जाता है। इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने यह पहलू यहां पर बयान किया है। इसी तरह याद रखिएगा कि जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा करने के लिए इन और इल्ला को भी एक साथ इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि माँ के बाद इल्ला जब आता है खबर से पहले, तो उससे ताकीद पैदा होता है। इसी तरह कभी कभी अगर इन आता है
ان भी इनकार का जुमला डेवलप करता है, मगर इन के बाद अगर इल्ला आ जाए तो इससे भी ताकीद पैदा होती है। सूरह अनाम की एक आयत आपके सामने रख लेते हैं। सूरह अनाम आयत नंबर 29, अल्लाह फरमाता है, इन नहीं है, हिया इल्ला हयातुना दुनिया, नहीं है मगर हमारी दुनियावी जिंदगी ही, वमा नहनु बिमबऊसीन, और हम हरगिज नहीं उठाए जाने वाले। मुशरिकों से जब बात की जाती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे तबलीग करते थे, उनको आखिरत की बात बताई जा रही थी, तो वो कहते थे इन हिया इल्ला, यानी नहीं है, यानी कोई जिंदगी नहीं है, इल्ला हयातुन दुनिया, बगैर ये जो जिंदगी हमारे पास है। यानी इस वक्त भी आपने देखा, इन जो है इनकार का जुमला जो है, इसमें ताकीद, पॉजिटिव ताकीद देने के लिए इल्ला को दाखिल किया गया है, वमा नहनु बिमबऊसीन, और हम हरगिज उठाए नहीं जाने वाले हैं। अल्लाह तबारक तआला ने इसके बाद उनको फिर जवाब दिया, हरगिज ऐसी बात नहीं है, तुम बेकार पैदा नहीं किए गए हो, जब तुम मर जाओगे तुम्हें यकीनन उठाया जाएगा और तुमसे हिसाब लिया जाएगा। तो ये तो था हमारे पास सबसे पहला मनफी हरफ नाफिया, जिसकी वजह से जुमला इस्मिया में इनकार का पहलू, या जिसको हम कहते हैं नेगेटिव डेवलपमेंट या नेगेटिविटी, जिससे मनफी पहलू, नेगेटिव सेंटेंस जिससे बनता है। इसके बाद मैंने मिसालें दी, मैंने आपको बताया किस तरह ये मजीद नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है और किस तरह इसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। दूसरा जो हरफ नाफिया है वो है ला। अब माँ के बारे में हमने ये पढ़ा कि माँ जो है, ये अगर हमारे पास मुब्तदा चाहे नकरा हो चाहे मारिफा हो, हर सूरत में आता है। ला जो है इसकी एक खास कंडीशन है, ला सिर्फ नकरा मुब्तदा पे दाखिल होता है और उसे मुअक्खर होने से बजाता है। यानी हमें पता है कि नॉर्मली ये जो मुब्तदा है, ये हमेशा, यानी अक्सर और बेशतर हम देखते हैं ये यानी ये जो ये मारिफा होता है, नकरा नहीं होता। और नकरा होने की सूरत में तब ये नकरा होता है जब ये इब्तिदा में आता है, और जब ये इब्तिदा आता है तो उस वक्त उस चीज पे या उस जुमले पे जोर देना मकसूद होता है। ये हमने पढ़ा है अभी तक। यानी जब भी हम देखेंगे मुब्तदा नकरा इस्तेमाल हुआ है, मगर जब हम देखेंगे ला इब्तिदा में आ गया, याद रखिएगा उस वक्त जो ये मुब्तदा है ये नकरा है, जैसा कि आप देख रहे हैं नकरा ही है। और दूसरी चीज इस ला की वजह से वो ये है कि नकरा होने के बावजूद इसको वो मुअक्खर नहीं करता, बाद में नहीं लाता, बल्कि पहले ही रखता है। हमने ये पढ़ा था कि जब भी मुब्तदा यानी हमारे पास मारिफा नहीं नकरा होता है तो वो मुअक्खर होता है, बाद में आता है। खबर पहले आती है कायम मुकाम, या खबर आती है पहले और मुब्तदा बाद में चला जाता है। मगर यहाँ पर आप देखेंगे अगर ला के बाद हम देखेंगे जुमला इस्मिया, तो जुमला इस्मिया का जो हमारे पास मुब्तदा होता है वो नकरा आता है और वो मुअक्खर भी नहीं होता क्योंकि ला आ गया, जैसा कि यहाँ पर है। बाकी ला की वजह से जो इसकी खबर है, आपको पता होना चाहिए कि खबर यहाँ पे भी वही होता है कि उसमें यानी वो रफा से निकलकर नस्ब में चला जाता है। जैसे यहाँ पर है ला रजुलुन खैरम मिनका, कोई भी मर्द बेहतर नहीं तुझसे। ला रजुला यानी कोई मर्द नहीं है, खैरन अच्छा बेहतर, मिनका आपसे। सूरतुल बकरा में एक मिसाल इसकी है और बहुत जगह और भी जगह, ला खौफुन, और कोई खौफ नहीं होगा, अलैहिम उन पर। तो ला यहाँ पर इब्तिदा में आ गया तो ये हरफ नाफिया है। खौफुन या मुब्तदा है, आपने देखा मुब्तदा जो है ये यहाँ पर हमारे पास नकरा है, और नकरा होने के बावजूद ये इब्तिदा में ही है, ये मुअक्खर नहीं हुआ। और अलैहिम उसके बाद में है, यानी कायम मुकाम खबर। अलैहिम इसमें कायम मुकाम खबर है या खबर है, हम ये कह सकते हैं ला खौफुन अलैहिम, कोई खौफ नहीं है उन पर, सूरतुल बकरा। इसी तरह तीसरा जो हमारे पास हर्फ नाफिया है वो है लाता। कुरान मजीद में कुछ जगहों पे लाता इस्तेमाल हुआ है इनकार के लिए। हर्फ यानी इसको नाफिया कह सकते हैं लाता, जैसे लाता हीन मनासिन, असल में हीन जो है लातल हीनु हीन मनासिन, ये हीन जो इब्तिदा में है, यानी मुब्तदा जो इसमें है ये यानी जिसको हम कह सकते हैं हज़फ है,
मुब्तदा लाने की ज़रूरत नहीं है। लाता, फिर उसके बाद खबर डायरेक्टली है, हीन मनासिन, नहीं है ये वक्त छुटकारे का वक्त। सूरह साद आयत नंबर 3, क़यामत में कहा जाएगा कि ये जो वक्त है ये छुटकारे का वक्त नहीं है। तो लाता भी इब्तिदा में आ जाता है और उस सूरत में ज़्यादातर आता है जब हमारे पास मुब्तदा जो है ये हज़फ हो, यानी लिखा नहीं गया हो, वो हज़फ होता है, ऑटोमेटिकली उसका माने डेवलप हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, ज़्यादातर वो हमारे पास, इसके बाद हम पढ़ेंगे फ़ेल, फ़ेल के साथ ऐड होती हैं। इस्म के साथ या तो मा इस्तेमाल होगा या ला इस्तेमाल होगा या कभी-कभी लाता भी इस्तेमाल होगा इनकार करने के लिए। अब एक और चीज़ आप पढ़िएगा, चूँकि हम आज नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे पास एक और लफ्ज़ है जिसको कहते हैं लाए नफ़ी जिन्स। लाए नफ़ी जिन्स, ये क्या होता है? ये भी ला ही है, इन्हें इब्तिदा में ला आ जाता है, जैसे अभी हमने पढ़ा ला होने की वजह से वो नेगेटिव में चला जाता है, मगर एक स्पेशल ला है जिसको कहते हैं लाए नफी जिन्स। याद रखिएगा, जब भी किसी इस्म की मुकम्मल जिन्स यानी पूरी क्लास का हमें नफी करना मकसूद हो, यानी जब भी हमें पूरे का पूरा उस क्लास का, यानी न सिर्फ वो इस्म बल्कि इस्म के अंदर जितने भी क्लासेस आते हैं, मुकम्मल इनकार करना होता है, उस वक्त हम नॉर्मल ला नहीं बल्कि लाए नफी जिन्स दाखिल करते हैं। यानी ऐसा ला लाते हैं जो हर किस्म का इनकार उस जुमले में करते हैं, हर किस्म की जो मुकम्मल जिन्स का इनकार करते हैं, उस ला को हम लाए नफी जिन्स कहते हैं। उसकी पहचान ये है कि इसका जो लाए नफी जिन्स का जो इस्म होगा वो वाहिद होगा, ठीक है, और नकरा होगा और तनवीन के बगैर होगा और हालत नस्ब में होगा। ये 4 चीजें आप याद रखिएगा। इस्म वाहिद होगा, यानी मुसन्ना और जमा पे नहीं आएगा। इस्म नकरा होगा, नॉर्मली मारिफा होता है मगर यहाँ नकरा होगा, और वो इस्म तनवीन के बगैर होगा। हालांकि अभी तक हमने पढ़ा है कि इस्म जब नकरा होता है उसके साथ तनवीन होती है, मगर एक तो नकरा होगा और तनवीन भी नहीं होगी, और वो इस्म जो है हालत रफा से निकलकर हालत नस्ब में आता है। ये 4 चीजें स्पेशल होता है। अगर ला के बाद आप इस्म इन 4 चीजों में देखेंगे तो याद रखिएगा, उस वक्त जो ला आया है हरफ नाफिया, ये इस वक्त आम ला नहीं है बल्कि लाए नफी जिन्स वाला ला है। आपके सामने कुरान मजीद की आयत है, मिसाल के तौर पर आयत 256, ला इकराह। इकराहुन असल में यानी जुमला यानी इसम है, इकराहुन जुमला है, जुमला नहीं बल्कि इसम है। इकराहुन इसम है, इकराहुन इसम है, मगर अब देखिए ला की वजह से क्या हुआ, इकराहुन जो है ये वाहिद है तो क्लियर हो गया। इकराहुन नकरा है तो आपने देखा नकरा है। उसके बाद इकराहुन के बजाय इकराहु होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया तनवीन के बगैर है, ठीक है। अब तीसरी बात तो ये हो गई, ये तो क्लियर हो गया, इकराहुन के बजाय इकराहु होना चाहिए, मगर आपको मैंने बताया कि हालत नस्ब में चला जाता है तो इकराह, ठीक है। चारों चीजें आ गई, ला आ गया पहले, तो ये नॉर्मल ला नहीं बल्कि लाए नफी जिन्स है। ला इकराह फिद्दीन, तर्जुमा, नहीं है कोई भी जबर दीन में। यानी इससे आपको पता चलेगा कि दीन में किसी भी किस्म का जबर नहीं। दीन में दाखिल होने के लिए, दीन की तरफ बुलाने में किसी भी किस्म का, यानी एक तो होता है कि चलो भाई इनकार किसी चीज का होता, 4 चीजों का इनकार, 10 चीजों का इकरार, बल्कि यहाँ जो हुक्म दिया गया है कैसे पता चलेगा, क्योंकि लाए नफी जिन्स इस्तेमाल हुआ है। मतलब ये होता है कि किसी भी किस्म का जो जबर हो, चाहे वो पैसों का जबर हो, जबान के जरिए जबर हो, तलवार के जरिए जबर हो, किसी तरह इन्फ्लुएंस करने के वक्त जबर हो, कोई भी किस्म का जबर जो है वो दीन में नहीं है। ये कैसे पता चल गया? ये पता इससे चल गया कि ये जो हमारे पास ला इस्तेमाल हुआ है, इसने हर एक किस्म के जबर को इनकार कर दिया। इकरा कहते हैं जबर को, कराहत को। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला से की तरफ से हुक्म है कि किसी भी तरह का जबर, ज्यादती यानी जोर जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल करने के लिए नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा कि ला इकराह फिद्दीन। हदीस में आया है, मशहूर हदीस है, ला रहबानियत फिल इस्लाम,
नहीं है कोई भी रहबानियत इस्लाम में। यानी इस्लाम में किसी भी किस्म की रहबानियत नहीं। इस्लाम यानी इंसान का गोशे तनहा रहना, बिल्कुल दुनिया को छोड़ना, शादी ना करना, हर एक चीज से अलग रहना, बिजनेस में शामिल ना होना। यानी जो कहता है ना कि किसी भी किस्म का जो रहबानियत का उसलूब है इस्लाम में वो नहीं है। कोई कहता है कि भाई चलो भाई ये तो नहीं है, ये तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि लाए नफी जिन्स आया है, इसकी वजह से ये हो गया कि किसी भी किस्म का जो रहबानियत, जिसको लोग आम जुबान में रहबानियत कहते हैं, वो इस्लाम का पार्ट नहीं है। इस्लाम का ताल्लुक उस रहबानियत उस चीज से नहीं है। इसी तरह सही इब्न हिब्बान में है, ला शिगारा फिल इस्लामी, इस्लाम में वट्टा सट्टा नहीं है। ये वट्टा सट्टा क्या होता है कि भाई मतलब मैं आपकी बहन से तब शादी करूंगा जब आपका भाई मेरे बहन से शादी कर ले। यानी अगर एक तो होता है कि नॉर्मल तरीके से करें कि भाई ठीक है रिश्ता आ गया कर सकते हैं, दूसरा होता है कि अगर इसको लाजिमी करार दे कि मैं आपकी बहन से तब शादी करूंगा जब आपका भाई मेरे बहन से शादी, और उसको निकाह में लाया जाएगा, इसको आम जबान में वट्टा सट्टा कहते हैं। याद रखिएगा इस्लाम में इस वटे सटे की कोई भी गुंजाइश नहीं है। सही बुखारी की हदीस, ला ताअता फिल मासियति इन्नमा ताअतु फिल मारूफ, नहीं है कोई इताअत बुराई में। यानी आप ये नहीं कह सकते कि मेरा लीडर, मेरा सरदार, मेरा हाकिम या बहुत और भी चीजें जो आपके हाकिम रहे हों कि मैं उनकी इताअत करूं बुराई में। अल्लाह फरमाता है ला ताअता, यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है ला नफी जिन्स, यानी हर कोई जो ताअत है, यानी जो इत्तिबा है, वो मासियत में नहीं है, गुनाहों में नहीं। गुनाहों में किसी की भी मासियत नहीं, यानी इताअत नहीं है, इताअत नहीं है। इन्नमा तौअतु, बल्कि इताअत जो है वो सिर्फ मारूफ में है, नेकी में। सूरह मोमिन आयत 59 में है, इन साअता, बिलाशुबा क़यामत जरूर आने वाली है, लआयतुन ला रैब फीहा, बिलाशुबा क़यामत जरूर आने वाली है, नहीं है कोई शक उसमें। यानी किसी भी किस्म की शक, किसी भी किस्म की यानी जो गुंजाइश हो सकती है शक की, वो इस बात में नहीं है कि कयामत आएगी। हर एक किस्म के शक व शुबह को यहाँ पर ला नफी जिन्स को लाके यानी क्लियर किया गया है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 2, ज़ालिकल किताबु, वो किताब नहीं कोई, ला रैब फीही, जिसमें कोई शक हो। यानी ये वो किताब है, ये वो किताब है, अल्लाह तबारक तआला अपनी किताब के बारे में, कुरान मजीद के बारे में फरमा रहे हैं, ये वो किताब है जिसमें जर्रा बराबर भी किसी भी किस्म की शक नहीं है। यहाँ पे भी जो मैं लफ्ज बयान कर रहा हूँ ना, किसी भी किस्म की, ये ला नफी जिन्स की वजह से मैं आपके सामने ये लफ्ज बयान कर रहा हूँ। हुदल लिल मुत्तकीना, और ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। एक हदीस में है, ला दीन लिमन ला अहद लहू, नहीं है उसका दीन, किसका दीन नहीं है, ला दीन, यानी हर किसी दीन को, दीन के हर किसी जुज को, दीन के हर किसी इंपॉर्टेंट उसको खत्म किया गया, यानी उसमें कोई भी दीन का जुजू नहीं है जिसमें अहद नहीं हो, जो वादा पूरा नहीं करता। यहाँ पे भी लाए नफी जिन्स लाया गया है। हदीस में है, अना खातमुन नबिय्यीन, मैं नबियों को मुकम्मल करने वाला हूँ, ला नबी या बादी, यहाँ पे भी ला नफी जिन्स है, यानी हरगिज हरगिज मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। किसी भी किस्म की गुंजाइश, जिल्ली नबी, बरोजी नबी, ये जो कहते हैं कि भाई मैं तो नबी नहीं हूँ, जिस तरह बहुत सारे लोगों ने दावे किए हैं, जिस तरह अहमद कादियानी ने भी दावा किया था, तो उस हर चीज की यानी जो ये जो क्लास, नबी का जो क्लास है, उस क्लास के हर एक चीज को मतलब इस लाई नफी जिन्स के बाद खत्म किया गया कि मेरे बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। इसमें भी आप याद रखिएगा कि लाई नफी जिन्स के इसम के बाद अगर हरफ इस्तिस्ना इल्ला आ जाए तो उसके बाद वाला इसम जो है लाई नफी जिन्स से मुस्तस्ना होता है और उसे हालत रफा में ले आता है। जैसे ला इलाहा, कोई अल्लाह नहीं है, यानी कोई माबूद नहीं है, यहाँ पे भी लाई नफी जिन्स है, मगर उसके बाद इल्लल्लाहु, जब इल्ला आ गया तो इसने इस लाई नफी जिन्स के ला को यानी इनकार को खत्म किया, बल्कि इसने काफी ज्यादा जोर दे दिया, जैसा कि पिछली बार भी हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था। ला हौला, नहीं है कोई ताकत, वला कुव्वता,
اور نہیں ہے کوई कुव्वत इल्ला बिल्लाह, मगर ये कि अल्लाह के साथ। यहाँ पे भी हम ताकत और कुव्वत का इनकार कर रहे हैं। हर किसी ताकत, हर किसी कुव्वत, मगर चूं ही जब इल्ला आ गया तो इसने लाए नफी जिन्स जो जिसका असर था उसकी नेगेटिविटी को खत्म करके जोरदार इसमें पॉजिटिविटी डेवलप कर दी। तो ये जो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुरान मजीद में बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में ये काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इंशाल्लाह आज हम अपना लेक्चर यही पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मजीद हम जुमला इस्मिया के बारे में पढ़ेंगे। कोशिश ये होती है कि हम मिसाल जो दें वो कुरान मजीद से ही दें, ताकि जब भी आप कुरान मजीद पढ़ें तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा मिले और आपकी चीज़ें, ये आपके यानी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएगी। मोहसिन भाई जज़ाकल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। बारकल्लाह फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।